everyone, welcome to my channel K the Occupational Therapist. My name is Kirti. So this is a voiceover video which will help you guys to note down all the points that I'm going to explain about tuberculosis of hip joint. So you will be studying about the causes, the clinical features and all about tuberculosis of hip joint. So get ready, take your pen and paper and get ready to note down all the points. सो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप जॉइंट एक ऐसा टीबी है विच टोटल टीबी जो हमारा कॉज होता है दैट इज 15%, और उसमें से अगर हम स्पेसिफिकली टीबी ऑफ हिप जॉइंट की बात करें देन द कॉजिंग प्रोबेबिलिटी इज 1 to 3%. द एरियाज ऑफ इन्फेक्शन जो टीबी ऑफ हिप जॉइंट में मेजरली अफेक्ट होते हैं दैट इज एसिटाबुलम रूफ, साइनोवियम, एपिफाइसिस, metaphysis and greater trochanter. As you can see in the picture, these are the 5 major areas which get affected. Okay, so when we talk about pathogenesis of the disease, synovial membrane is most commonly affected. यहाँ का जो भी tubercle formation होता है उसकी वजह से hypertrophy is caused and it causes pannus formation and also ankylosis हो जाता है hip joint. And when we talk about the smaller tubercle of the area, वहाँ पर फॉर्म हो जाता है cold abscess जो basically 5 regions को affect करता है: inguinal region, medial side of the thigh, femoral triangle, gluteal region and lateral aspect of the thigh. You can also see in the picture. Okay, so now let's talk about the clinical features. Number 1 is antalgic gait, painful gait हो जाता है. The person feels pain while walking and pain becomes maximum at night and also thigh और gluteal muscles में wasting हो जाती है and there is tenderness अगर ज़्यादा pressure apply किया जाए. Okay, let's come to the stages of TB. Number 1 is stage of synovitis. The disease is synovial with the patient assuming flexed, abducted and external rotation of the leg, and this is apparent lengthening which is caused. Real shortening नहीं देखी जाती and the movement becomes very painful. And stage 2 is the stage of early arthritis. जो भी पेनफुल साइंस होते हैं दे बिकम वेरी एग्जैजरेटेड, स्पाज्म कॉज होने लग जाता है एंड देयर इज एपरेंट शॉर्टनिंग विच इज सीन, सिग्निफिकेंट मसल वेस्टिंग हो जाती है एंड ऑल्सो द हिप मूवमेंट्स बिकम वेरी पेनफुल. द नेक्स्ट इज स्टेज 3, स्टेज ऑफ एडवांस्ड आर्थराइटिस. स्टेज 2 के जो भी फीचर्स होते हैं दे बिकम वेरी एग्जैजरेटेड, हिप मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड द हेड ऑफ फीमर पे डिस्ट्रक्शन इज ईजीली विजिबल. Then is stage 4, stage of advanced arthritis with subluxation of dislocation. Acetabulum, the pathological posterior जो dislocation होता है it starts migrating and posterotio acetabular जो basic हमारे features है they become very affected. Okay, so these are the 4 stages of TB of hip joint. As you can see in the picture, basic 3 stages are shown. Now let's talk about the deformities which may be caused. First is flexion deformity. जो भी initial stages होते हैं patient अपने आप को ease में रखने के लिए flexion में रखता है जिससे joint capacity vary करती है और उसको ठीक करने के लिए ground से ऊपर के level पर उसे लेकर आते हैं to decrease the pain. The next is adduction deformity. सॉफ्ट टिश्यू का कॉन्ट्रैक्चर इज़ वेरी इजीली विजिबल और उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, उस चीज़ को टैकल करने के लिए द लिम्ब इज ब्रॉट टू द ग्राउंड बाय एलिवेशन ऑफ द पेल्विस. उसे हायर लेवल पे रखते हैं ताकि पेन पेशेंट को कम से कम फील हो एंड ऑल्सो इसमें स्कोलियोसिस देखा जाता है. नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज एबडक्शन डिफॉर्मिटी. जॉइंट स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और पोजीशन आ जाती है फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन की. उस चीज़ को फिक्स करने के लिए लिम्ब को डाउनवर्ड लेके जाया जाता है ASIS के अकॉर्डिंगली लोअर लेवल पे उसे रखा जाता है. द लास्ट डिफॉर्मिटी दैट वी टॉक अबाउट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी विच इज़ कॉमनली सीन. इनिशियल स्टेजेस में एपरेंट लेंथनिंग होती है और एडवांस स्टेजेस में द पेशेंट डेवलप्स शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब. The next we talk about the radiographical features of the hip. Number 1 is normal appearance जिसमें normal लगता है limb. Next is traveling और wandering acetabulum. Destruction हो जाता है joint का arthritis होने की वजह से and also due to the muscle spasm which is caused. The head of the femur comes to lie in the region of the ilium. जो ilium region होता है उसके पास आकर acetabulum lie करता है.
The third type is dislocated hip. In this condition, pathological dislocation देखा जाता है of the hip joint. The next is Perth type. जो फीमर का हेड होता है, इट बिकम्स वेरी डेंस और ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से देर आर चांसेस ऑफ इट बीइंग कोलैप्स्ड. The fifth type is atrophic type. Head of the femur is small and also atrophy is caused in head of the femur. The next is protrusio acetabuli type. Gross reduction of the joint space is caused. Head of the femur protrudes through the acetabulum into the pelvic cavity. Pelvic cavity में protrusion होता है head of the femur का passing through the acetabular region. The last type is mortar and pestle type. In this condition, फीमर का जो हेड होता है इट बिकम्स स्मॉल एज अ पेस्टल और जो एसिटाबुलर कैविटी होती है इट बिकम्स वाइड एज अ mortar. So this classification that we talked about is easy to assess the severity of the condition. TB of hip joint कितना ज़्यादा सीवियर है, so radiographical features के थ्रू हम ये चीज़ जज कर सकते हैं. TB ऑफ हिप जॉइंट को क्योर करने के लिए मेजरली सर्जरीज करनी पड़ती है और सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के बाद में रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसीजर दैट वी कैन फॉलो. सो नंबर 1 इज द प्री ऑप रिहैबिलिटेशन पार्ट. सर्जरी होने से पहले रिहैबिलिटेशन के लिए हम जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं. नंबर 1 इज द रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर हेल्प्स टू डेवलप पेशेंट स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन पे हम काम कर सकते हैं ताकि सर्जरी के बाद इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेशेंट टू वॉक एंड टू परफॉर्म ऑल द एडियल एक्टिविटीज. द बेनिफिट्स ऑफ प्री ऑप रिहैबिलिटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द डिक्रीज लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल. अगर सर्जरी से पहले द पेशेंट को अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस प्रॉपर थेरेपीज करवाते हैं तो हॉस्पिटल में स्टे का ड्यूरेशन हम कम करवा सकते हैं, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करवा सकते हैं एंड ऑल्सो थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच का रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड इट विल हेल्प द पेशेंट इन लॉन्ग रन आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो. नेक्स्ट इज एजुकेशन और एडवाइस हम लोग दे सकते हैं टू द पेशेंट एंड ऑल्सो टू द केयर गिवर. रिहैबिलिटेशन के क्या गोल्स हैं वो चीज़ हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. ADL में कैसे अपने आप को अडेप्ट करवाना है आफ्टर द सर्जरी एंड ऑल्सो जो भी सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं. सो दिस वॉज बिफोर द सर्जरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन. व्हाट आर द रिहैबिलिटेशन मेजर्स विच वी कैन प्रिस्क्राइब आफ्टर द सर्जरी. नंबर 1 इज पेशेंट की जो भी फंक्शनल नीड्स हैं, मोबिलाइज कैसे करना है, हाउ डज द पेशेंट हैव टू स्टार्ट वॉकिंग, मोबिलिटी इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना एंड ऑल्सो पेन रिड्यूस करना. सो दीज आर द मेजर गोल्स दैट वी हैव टू अचीव. और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असिस्टेड प्रोसेस से. सो वी हैव टू असिस्ट द पेशेंट इन ऑल द एक्टिविटीज इनिशियली, बट द एम इज द गोल इज टू मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, बट पेशेंट को पेन भी नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव फेज में जब हमने जो रिहैबिलिटेशन किया था दैट ऑल्सो एड्स टू द पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन. मसल एट्रोफी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी प्रिवेंट कर चुके हैं. सो वी कैन टारगेट द ग्लूटियस मसल्स एंड द क्वाड्रिसेप मसल्स जो बेसिकली हमारी गेट पैटर्न में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी कैन प्रिस्क्राइब इज द स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम. हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने के बाद प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, मोटर इमेज ट्रेनिंग, फिजिकली हम उसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपनी अडेप्टेशन को और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके. देन इज एक्सेलरेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जिसमें हम अर्ली मोबिलाइजेशन करवाते हैं ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप हो. आफ्टर सर्जरी देर आर पेशेंट्स हु माइट हैव द फियर कि वो गिर सकते हैं या दोबारा इंजरी हो सकती है. सो उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड गेट स्पीड. द वॉकिंग स्पीड, द गेट पैटर्न, उस पर हम लोग फोकस करते हैं. पेशेंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है एट द एंड. नेक्स्ट इज टू मैक्सिमाइज द पेशेंट्स फंक्शन. जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी करवानी है हमें डिस्चार्ज ताकि जल्दी हो तो हमें उतना ही पेशेंट का फंक्शन मैक्सिमल करवाना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड पेन रिलीफ विच इज़ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी. एंड ऑल्सो ADL ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर फ्यू डेज ऑफ बेसिक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज.
The last part is what is the home program that an occupational therapist can prescribe to the patient after total hip replacement surgery. Number 1 is we can provide modifications. उसके घर में ergonomically हम उसे modify करवा सकते हैं. For example, हम safety bars और hand rails install करवा सकते हैं. Staircase में हम लोग hand rails install करवा सकते हैं. We can provide a stable chair ताकि रिकवरी जल्दी हो, और जो भी सीटिंग होगा, जो भी सीटिंग चेयर्स हैं उनमें कुशन इफेक्ट हम लोग इंक्रीज करवा सकते हैं. द नेक्स्ट इज स्टेबल शावर बेंच. वेन एवर द पेशेंट हैज़ टू टेक अ बाथ, वहाँ पर एक चेयर या फिर